वेलकम टू B2Net को चैनल। गाइज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग माय प्रीवियस वीडियोस। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इन केस यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट और एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू वांट टू शेयर। तो गाइज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो हम देख लेते हैं व्हाई इट इज़ यूज। सो फर्स्ट द फर्स्ट पर्पस दैट इट इज़ यूज इज इट वाज टू address the shortage of IP addresses, right? IPv4 addresses की हमारे पास लिमिटेशन है, so to control that this net technology was introduced. So that's why it translates private IP addresses to public IP addresses. So those private IP addresses don't come on internet, right? तो ये नेट टेक्नोलॉजी की हेल्प से साबित हो पाया। हम थोड़ा पब्लिक आईपी की रेंज हमारी ख़त्म होने का से पहले हमें थोड़ा टाइम मिल गया। So second benefit that we get from a net is it provides security to our internal IP addresses, right? Because internal IP addresses are hidden and global internet guys never come to know about the internal IP addresses of our internal devices, right? So our internal machines connect to our net router, and net router translates that internal IP address to a public IP, global IP, and that maintains the table that which private IP address was translated to which public IP, right? तो आज ये हम देखेंगे, आज हम स्टैटिक नेट का प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं there are three types of net technologies that are available to us. One is static net, in which we have a one-to-one mapping, right? Uh, a private address is uh, translated to a global IP with the help of a net router, and that database is maintained by net router, right? And the second type of an address translation that we have is a dynamic net, in which we configure a pool of IP addresses for translation, and net router translates all the internal IPs, right, private IPs into a public IP from that pool, right? So third is port address translation, in which uh, the internal IPs are transferred in form of ports, right? And it can you translate around 65,000 private IP addresses, and it maintains that information, that mapping to a port number, right? And the single public IP is used in PET and dynamic net, right? So this is also called as overload net. तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। विल बी यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइज इसकी सिनेरियो दिखा देता हूँ। हियर वी हैव वेब सर्वर, राइट, दैट इज इंटरनल टू आवर डोमेन, to our environment, that has an internal IP address as 10.0.0.2. It's connected to fast ethernet to a net router that has internal IP as 10.0.0.1, and our net router is connected to our ISP through a serial cable that has its public IPS 100.0.0.2, and our ISP IPS is 100.0.0.1. So when we will translate a web server, we want that our 10.0.0.2 IP address should go on internet as 20.0.0.2, right? So we can assume that 20.0.0.2 is a public IP, global IP, routable IP for our demonstration, right? So first of all, let me take to a web server. तो सबसे पहले मैं आपको इसकी I have already assigned them IP addresses. तो ये 10.0.0.2 IP address is given to वेब सर्वर। तो मैंने इस पे राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 10 network is connected, and I have given the default gateway, right?
कि every packet that it wants to set to internet, it should send that to fast ethernet 0 net interface that is connected to router, because router is connected directly to ISP, right? तो अभी हम नेट राउटर के कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ये नेट राउटर पे हमारे दो इंटरफेसेस हैं, 10001 फॉर लैन एंड 100002 इज फॉर सीरियल दैट इज कनेक्टेड टू आईएसपी, राइट? तो इसका मैं आपको शो आईपी राउट भी दिखा देता हूँ। तो I have configured default routing on a net router also, so that whenever you want to send any packet to internet, send that to ISP, right? ये हमारा ISP है। तो गाइज अभी ISP पे चलते हैं। शो IP int brief। तो ये IP ISP पे हमारा एक भी इंटरफेस है, तो इसका राउटिंग भी देख लेते हैं मैंने क्या कॉन्फ़िगर करी हुई है। या गाइज एंड वन स्टेप आई फॉरगॉट, तो मैं वो अभी कर लेता हूँ। हमारा जो 10002 आईपी है, राइट, वी नीड टू इन्फॉर्म टू आईएसपी बिकॉज दैट आईपी पब्लिक आईपी वी हैव टेकन फ्रॉम आईएसपी। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें आईएसपी को ऑलरेडी पता ही होगी। तो 10 नॉट 10 20 20.0.0.2, जब भी आईएसपी ने ये नेटवर्क को राउट करना, वेयर इट विल सेंड टू 255.0.0.02। यहाँ पे देख लेते हैं सीरियल 2/0। तो अभी ये राइट, तो हमने आईएसपी को बता दिया कि whenever it wants to route 2000 network, it should send it to serial 2z/0। अभी आईएसपी का राउट देख लेते हैं। तो 20 नेटवर्क को ये भेजेगा 2/0 पे, राइट। लेट्स राइट दिस डाउन। तो नेट राउटर के भी राइट कर लेते हैं और वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी राइट कर लेते हैं। तो अभी हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले गाइस पिंग करके देख लेते हैं कि एंड टू एंड पिंग इज पॉसिबल और नॉट। वेब सर्वर से पिंग करके देख लेते हैं गाइस। मैं फॉर ईज ऑफ फॉर आवर कंफर्ट में थोड़ा इसका नेम चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें टाइटल भी सही दिखे इसका। अदरवाइज समटाइम्स इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो हम पिंग करके देख लेते हैं। हमारा पिंग हो रहा है, राइट। पिंग नेट राउटर का हमारा आईपी है 10001, राइट। तो हम देखेंगे 10.0.0.2 एंड टू एंड पिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम 100.2 और 100.1 में भी आईपी पिंग देख लेते हैं। 100.0.0.2 एंड ऑल पिंग्स आर पॉसिबल, राइट। तो अभी हम नेट राउटर पे चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं नेट की। सबसे पहले गाइज हमें बताना पड़ेगा कौन सा इंटरफेस इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है। तो फास्ट इथरनेट इज टुवर्ड्स इनसाइड, फास्ट इथरनेट हमारा लैन का है। तो हम इसको राउटर को बता देंगे फास्ट इथरनेट आईपी ये हमारा इनसाइड है, राइट। तो हमने एग्जिट करा, इंटरफेस सीरियल 2/0 हमने बता दिया, आईपी नेट आउटसाइड। तो अभी चलते हैं आईपी नेट। तो इसको बता देंगे अगर इनसाइड से पैकेट आता है कोई विद सोर्स आईपी एड्रेस 10.0.0.2, then what should happen? Then it should be translated as global IP, that is 20.0.0.2, right? आगे देखते कोई ऑप्शन है नहीं है, so let's enter। तो अभी
राइट कर लेते हैं शो आईपी नेट ट्रांसलेशंस। गए हम जब ये कमांड देते हैं आईपी नेट इनसाइड सोर्स, तो उसके बाद ये नेट टेबल क्रिएट कर लेता है, एंड दैट टेबल शोज दैट व्हेनेवर पैकेट फ्रॉम inside LAN with IP address this will come, it will go outside as a 10002, राइट। तो अभी हम पिंग करके देखते हैं कि इफ वेब सर्वर डजंट नो अबाउट आईएसपी आईपी एड्रेस, तो सबसे पहले वेब सर्वर पे चलते हैं और पिंग करके देखते हैं वेब सर्वर इज एबल टू रीच आईएसपी और नॉट। वेब सर्वर के राउटिंग टेबल में आईएसपी का आईपी एड्रेस नहीं है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। And it is able to contact ISP, right? Now let's go to net server, and before that let's go to ISP। तो ISP पे हम debug command enable करते हैं, तो वेब सर्वर पे हम दोबारा पिंग करते हैं, and let's see what happens। तो गाइज एज यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इन केस यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। तो यहाँ हम देख सकते हैं आईपी पैकेट आ रहा है विथ सोर्स एज 10002 एंड डेस्टिनेशन एज फॉर 100001। 100 इज आईपी ऑफ आईएसपी, और उसके साथ रिप्लाई जा रहा है वापस, राइट। ISP doesn't know about 10001 but still reply is going। तो उसके लिए हम नेट राउटर पे जाएंगे और देखते हैं debug IP net, राइट। तो अभी हम दोबारा पिंग करते हैं और हम ये नेट राउटर पे देखते हैं व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। Guys, as you can see here, the packet is coming from source 10002, and this source is being translated by net router as 20002, then it is going to destination 100001. When reply is coming from 100001, it is going to destination 20002, that is net routers, that this IP address is with the net router, right? So net router is again translating it back to 10002। So guys, this was how static net translation is done। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, and don't forget to hit the notification bell so that whenever I update upload the next video, you should get the information। guys, हमारा next session होगा डायनेमिक नेट पे, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे पैट। thank you for watching this video।